Hello, good morning student. Welcome to the physics class. Student, in previous video we have discussed about the concept of capacitance. Now today we will discuss about again concept of capacitance in the form of conductor. Suppose that you have a spherical conductor. This is the spherical conductor. The electric field and force due to spherical conductor has been deleted from the side of CBSE, but in case of capacitance we will consider it. Okay student, okay start करते हैं. ये क्यों कर रहे हैं हमेशा, why we are doing this? Actually अब हम ये देखना चाहते हैं, हमने स्टडी किया कि 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट. ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है. अब अगर ये एक लार्ज यूनिट है, हाउ कैन वी जस्टिफाई इट? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने कंडक्टर लिया एंड दैट कंडक्टर शेप विल बी स्फेरिकल शेप. अकॉर्डिंग टू दैट, सपोज द चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज प्लस क्यू. Charge on this conductor is plus Q. Okay student, we have got study about the formula of capacitance, that is C is equal to Q upon V. Got charge we know already, that is Q. Now what is a potential? Potential in case of spherical conductor we have got already the potential. What is potential? V is equal to KQ upon R. Clear? Now you have to place the value of V here. C is equal to Q upon KQ upon R. The Q will be cancelled out and 1 upon 4 pi epsilon naught into R. Okay, so what is capacitance of this spherical conductor? 4 pi epsilon naught R. This is the small derivation to justify the capacitance, means the farad is a very large unit. Okay, how we can justify? This is the only simple derivation. देखिए student, the capacitance of the spherical conductor actually depends on the radius of that conductor whenever you will place that in the form of sphere. Is that clear? Okay, R means C directly proportional to R. This one is the constant quantity, 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. ओके स्टूडेंट, नाउ कि ये जो फैरेड होता है हमारा, इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. सपोज दैट यू विल कंसिडर द अर्थ. यू आर कंसिडरिंग द अर्थ. व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 kilometer. R is the radius of earth and the radius is 6400 kilometer and 6.4 into 10 raised power 6 meter. You have to convert it into SI unit. अब हमने इसको SI unit में convert किया. Okay, now we want to check what is the radius. What will be the radius for the 1 coulomb? अगर हमने 1 coulomb charge को place किया, in that case what will be the radius? Okay student, R is equal to C upon 4 pi epsilon naught. मैं देखिए डायरेक्ट इससे कंपेयर कराऊंगा आपको. मैंने किसको कंसीडर किया है? अभी अर्थ की रेडियस को यहाँ पर लिख दिया है. नाउ वी वांट टू कंपेयर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर विच हैव 1 कूलम चार्ज. एक कंडक्टर के पास 1 कूलम चार्ज है. व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर? स्टूडेंट, वी नो ऑलरेडी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised power 9. This will be the value. Already we have get study in unit first and chapter first. So place the value R. The value of charge is 1 coulomb. Place the value of charge is 1 coulomb and into 9 into 10 raised power 9. So R is equal to 9 into 10 raised power 9 मीटर. अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम 1 कूलम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, फॉर दैट स्टोरेज वी नीड अ स्फेरिकल कंडक्टर फॉर द रेडियस ऑफ 9 into 10 raised power 9. इतनी रेडियस हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए. अब इज इट पॉसिबल? क्या 1 कूलम चार्ज को स्टोर करना पॉसिबल है? नहीं.
अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेडियस होगी हमारी अर्थ की रेडियस से कहीं ज़्यादा है। देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, द रेडियस ऑफ 6.4 into 10⁻⁶ meter. This will be the radius of Earth, and this will be the radius in which we are using the 1 coulomb of charge. You can justify simply. अगर हमें 1 coulomb चार्ज को स्टोर करना है तो उसकी जो रेडियस होगी हमारी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू की होगी, ठीक है नहीं। अब मैं कैपेसिटेंस पे आ जाता हूँ। कैपेसिटेंस को क्या लिया मैंने, 1 फैरेड। कैपेसिटेंस को मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज से हमने क्या किया है, 1 कूलम चार्ज से हमने सिंपल 1 फैरेड को यूज किया है। अगर हम 1 फैरेड को यूज कर रहे हैं, अगर हमसे 1 फैरेड को यूज कर रहे हैं तो 1 फैरेड को यूज करने के बाद हमारी रेडियस आती है ये। तो वी कैन से इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर द कैपेसिटेंस दैट कैन स्टोर 1 कूलम चार्ज। अर्थ से बड़ा कैपेसिटर बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दिस विल बी द प्रोसेस टू अंडरस्टूड कि 1 फैरेड जो कैपेसिटेंस है दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कूलम से। अगर हम 1 कूलम चार्ज को लेते हैं इन दिस केस तो वी कैन सी डायरेक्टली, बट this is the capacitance. In this case you have to place the value of 1 farad. क्या यूज किया अब हमने यहाँ पर, 1 farad. All the unit we have already discussed. Okay, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1 farad की बात कर रहे हैं। Okay student, now come to the next topic, that is, अब देखिए, अब हमने स्टोरेज को पढ़ा। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाता हूँ, उस स्टोरी को आप समझिएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ लेक्चर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी। देखिए हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है। अब हमने कहा कि हमें अपने घर को चलाना है तो हमने 1 कुंटल गेहूँ लिए और उसको हमने किसी पर्टिकुलर टैंक में फिट किया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम गेहूँ को पिसाने जाएंगे तो वहाँ पे पूरी टंकी उठा के लेके जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमने एक छोटा कंटेनर लिया है। उस स्टोरेज से हमने थोड़ा सा स्टोरेज निकाला जो कि हमें सफिशिएंट वर्क कराएगा। ओके, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि स्टोरेज हमारा हो गया है। स्टोरेज हमने सीख लिया कि हम कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ अब हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक हमारे पास फैन है, फैन पे कंडेंसर लगा हुआ है। वैसा तो नहीं कि हमने पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया अलग। हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, हमने यूज किया है यहाँ पर सिंपल कंडेंसर दैट कैन रेगुलरली रन and provide the sufficient electricity to our fan and any other devices. Clear student? Okay, तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने एक डिवाइस जनरेट की that is known as capacitor. तो capacitor and capacity. Capacitor is a device and capacity is the magnitude of that particular device. Now, what is the difference between capacitance and capacitor? So your answer would be the capacitor is a device and the capacitance is the magnitude of that particular device. चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी किया है, C is equal to Q/V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलिएगा। गॉट इट? चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इसको। C is equal to Q/V, ये हमारी बात समझ में आती है। नेक्स्ट इज कि हम कैपेसिटर को कैसे बना सकते हैं और कैपेसिटर होता क्या है। आंसर है कैपेसिटर इज अ डिवाइस और इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इट इज an arrangement for storing sufficient amount of charge। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट स्टोर करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए।
अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारा पोटेंशियल रिड्यूस होना चाहिए। अब हमने कहा कि ये एक हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर है, दिस वन इज द ए प्लेट। एक चार्ज कंडक्टर लिया मैंने इसको, और प्लेट की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कहा मैंने, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अगर आपको उसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव पोर्शन सीखना है, चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हाउ कैन यू चेक द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर दैट पर्टिकुलर चेकिंग यू हैव टू यूज द इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्कोप? that tells us about the presence of charge, that is known as electroscope। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उसको यहाँ पे रखा, और रखने के बाद ये अगर लिप हमारी एक जो है नेचुरल कंडीशन में रहती है, अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट मीन्स ये सेपरेट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द डिवाइस बाय विच वी कैन judge or decide which charge present on this particular plate। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब अगर हमें स्टोरेज बनाना है तो हमें ये पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा। हाउ वी कैन डिक्रीज द पोटेंशियल? अब मैंने कहा जैसे हमने चार्ज को इंक्रीज किया, वेन एवर वी विल इंक्रीज द चार्जेस, इन दैट केस द पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। अब एक लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक पोटेंशियल इंक्रीज होता है हमारा। तो मैं एक यहाँ पर अनचार्ज कंडक्टर लेकर आता हूँ। अनचार्ज मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन इट। ओके, अब यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन स्टूडेंट देखिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन एक इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, दैट इज नॉन डाइलेक्ट्रिक। वो डाइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि मैंने वो शुरू कर दिया तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो टॉपिक बीच में रह जाएगा, तो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम इसको लेके आते हैं ड्यू टू इंडक्शन। अब देखिए, ड्यू टू इंडक्शन इसके लेफ्ट साइड में कौन सा चार्ज आएगा और राइट साइड में कौन सा चार्ज आएगा? विच चार्ज इन लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज। विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट अब समझना, कंसेप्ट अब शुरू होता है हमारा कैपेसिटर का। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी मैक्सिमम हो, इट मींस ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल रिड्यूस होना चाहिए, ना कि इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? लीक होना स्टार्ट कर जाएगा और वो डिवाइस प्रॉपर हमारे लिए वर्क नहीं कर पाएगी। चलिए, अब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज the potential will get reduced, and due to positive charge the potential will get increases. Whenever the potential will get increases, it means the capacity will decreases, but we want the potential will get decreases. For that we have to remove these positive charge. ये दो कंडक्टर है बच्चों, ये दो कंडक्टर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है हमारा, ये अनचार्ज है। जब हम अनचार्ज को इसके पास लेकर आते हैं, what happens with it? The negative charge will developed on left side and the positive charge developed on right side. ऐसा होता है। ओके, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल विल गेट रिड्यूस। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जब चार्जेस गिवन एंड टेक होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। वो हमने बात की थी कि एयर से ले लेता है, जब लेता है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। वो फर्स्ट पीरियड में हमने कंसिडर किया था। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल विल गेट रिड्यूस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल विल गेट इंक्रीजेस। तो हमें इन पॉजिटिव चार्ज का यूज नहीं करना है। अगर हम इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो हमारा जो जॉब होगा दैट्स रिमूव करना है, इन चार्ज को रिमूव करना। तो हाउ कैन यू रिमूव दीज चार्जेस? दीज चार्जेस कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। यू नो अर्थिंग, अर्थिंग हो सकती है हमारी, बिल्कुल हो सकती है। तो हमने यहाँ पर इसको अर्थ किया। अर्थ हमारे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव गो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब जैसे जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ की साइड जाएगा तो इसका जो इंक्रीजिंग इफेक्ट है ऑन दिस प्लेट दैट्स विल ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। इन दैट केस इट विल बिकम अ कैपेसिटर।
अगर आप एक कैपेसिटर रखना चाहते हो, देखना अपने घरों में एक पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एक अर्थ से कनेक्ट होता है। जब तक आप अर्थ से कनेक्ट नहीं करोगे तो वो एक कैपेसिटर नहीं हो सकता, बिकॉज कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है दैट्स विल इंक्रीज द पोटेंशियल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल वेन एवर द पोटेंशियल इंक्रीजेज द कैपेसिटी विल डिक्रीजेज, बट वी वॉन्ट टू द कैपेसिटी हैव टू इंक्रीजेज। Is that clear, student? Okay, this will be the concept of capacitor. So what is capacitor? It is an arrangement for storing sufficient amount of charge. देखिए मैंने यहाँ पर चार्ज का यूज किया है, हम नेचुरली बुक्स में लिखा है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो चार्ज ना होकर ये क्या हो सकता है, ये एक एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। किसकी फॉर्म में सेव होता है? एनर्जी की। फिर ड्यू टू एक्सटर्नल अरेंजमेंट वो एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी अदर एनर्जी में। इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है, एक सेल में हमने स्टोर किया, हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हम वहाँ पर वायर कनेक्ट करते हैं, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? ओके, ये चीज थी हमारी कैपेसिटर। ओके, अब इस कैपेसिटर को हम यूज करेंगे, बार बार ये वाले सिंबल तो हम यूज नहीं कर सकते। अब इन सिंबल को यूज नहीं कर सकते तो सिंबल क्या होना चाहिए? सिंपल है, हमने इसके लिए एक सिंबल बनाया। हमने कहा कि हमारे पास दो प्लेट होनी चाहिए, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव। इसका जो सिंबल है दिस विल बी द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो हमने कहा सिंबल ऑफ कैपेसिटर, symbol of capacitor. Okay, now another symbol we will also use, this will be the capacitor also. In this case when we will make a cross arrow it will become a variable. ये हमारे समझने का तरीका है, हमने इसको नोमेनक्लेट किया और अकॉर्डिंग टू दैट इसको नोमेनक्लेचर करने के बाद हमने कहा कि दिस विल बी द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये क्या हुआ हमारा? वेरिएबल। इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा? वेरी करेगा। इसका जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। देखना समझना, दिस इज अ डिवाइस एंड द स्टोरेज विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। ओके, इसमें कैसा कैपेसिटेंस होगा हमारा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला, कांस्टेंट, और इसमें क्या होगा? वेरिएबल। सो दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, अब अर्थ से तो हमारा काम नहीं चला, स्पेयर से हमारा वर्क नहीं चला, तो हमने एक्सटर्नल अरेंजमेंट करने स्टार्ट किए। इन दैट केस अब हमने कहा कि यार हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम ऐसी डिवाइस कैसे बना सकते हैं जो हमारे फ़ैन को। अब आप देखिए, अगर ये कैमरा जो होता है DSLR, उसको फ्लैश के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होती है, 25 वोल्ट, DC की मैं बात कर रहा हूँ, 25 एम्पियर की बात करो, एम्पियर में बहुत वोल्ट होती है, 25 एम्पियर का रिक्वायरमेंट होता है। अब हमारी सेल से क्या 25 एम्पियर जनरेट हो सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फॉर दैट वी विल यूज द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर करके रखता है, स्टोर किया हुआ उसने, जैसे हमने लाइट ऑन की तो वो अपने अंदर ले लेता है उसको और देन डू वर्क। इज दैट क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट, अब हम चाहते हैं कि हम इसको नेक्स्ट एप्लीकेशन में यूज करें। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में इनको कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने कहा कि हम दो प्लेट लेकर आए, हमारे पास दो प्लेट है। अगर हमारे पास दो प्लेट है और उनको हमने पैरेलली रखा, तो क्या ये प्लेट दो यूज हो सकती है एज ए कैपेसिटर? आंसर है यस, यूज हो सकती है।